December, my father passed away. Okay. After that, my journey started. That I want कि अब कुछ करना है खुद के लिए. मुझे फर्स्ट Family के- इन्वेस्टमेंट मेरी मदर ने दिया था, which Okay. is 7,000. होगा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा क्योंकि इट्स अ बिजनेस. इन अ बिजनेस ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, वो रोज सेम ग्राफ आप नहीं सबसे चलता पहले है. अगर सीखोगे नहीं तो आप करोगे कैसे? यस बिकॉज विदाउट चैलेंज कुछ स्टार्ट ही नहीं होते. This is Ramkrishna this side once again, your host. I hope everyone is doing well. So today we are coming with a new podcast. It will be informative for you also. Because अगर आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, और also if you want to be start something creative, this podcast going to be help you. और कोई नया person who just start their entrepreneurial journey, also it going to be help you more. So today's our guest, Miss Rishita Sharma. Ma'am, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm completely fine, ma'am. And thank you so much for coming to our podcast in a short notice. You have give the time for us. It's a very pleasure from our side also. Thank you so much for inviting me also. Yeah. So before starting the podcast, मैं viewers के लिए बताना चाहता हूँ. Rishita Sharma, she is a founder and CEO of Sridhar Fashion Brand. So also we'll give the links in the description. वहां से आपको उनका सब कुछ डिटेल्स के बारे में पता चलेगा. And also you can check out the brand. So मैम, बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट मैं बताना चाहता हूँ, हमारा पॉडकास्ट का क्वेश्चन का 2 सेगमेंट है. फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस वी गॉट फ्रॉम द और व्यूअर्स फ्रॉम आवर, और आल्सो सम क्वेश्चंस वी मेक बाय आवरसेल्फ. सो पहले स्टार्ट करते हैं ऑडियंस की क्वेश्चन के तहत. बिकॉज व्हेनेवर वी हैव पोस्टेड आवर पोस्टर, सो एक्चुअली ये हर पॉडकास्ट का पहले होते हैं. Most of the people was a question like that. Everyone wants to be know the background of yourself. Like आपने कैसे इस चीजों को स्टार्ट किया, क्योंकि सब चाहते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा. Because everyone has the question like that. So everyone wants to know that कि how Rishita Sharma has started her brand. Shrita, please share, man. Hi everyone, I'm Rishita from Udhampur. There's a city in Jammu and Kashmir. And Shridha start करने से पहले, from my childhood, I see my mother. She is independent woman. She has a Yeah. boutique in a home. So स्टार्टिंग से मैं उनको देखते आ रही हूँ. वो बहुत अच्छी बिजनेस वुमन है. शी इंस्पायर्ड मी अ लॉट एंड शी सपोर्ट मी. शी इज माय पिलर. And also Okay. my elder brother, he's he's magic in my life. Okay. He's so much inspiring me. He's not getting that environment, so he wants to also he wants to become a fashion designer. So Okay. या तो मुझे ये था कि मैं अब उनका भी सपना अपने साथ पूरा करूं, अपनी फैमिली का भी और अपना भी. सो मैंने फिर श्रीधा स्टार्ट किया. और श्रीधा स्टार्ट करने से पहले आई कंप्लीटेड माय स्टडीज इन निफ्ट फ्रॉम मुंबई. मैंने वहाँ Hmm. से कोर्स किया है लग्जरी प्रोडक्ट डिजाइनिंग का. ड्यूरिंग दैट कोर्स आई एक्सप्लोर देयर मार्केट्स for fabric material accessories for handbags and for clothing also. Hmm. So in 2020 I joined my mother's, and I see and I learn that how she deal with the customers, and Hmm. there's a different type of customers came, and it's a different variety. बिफोर स्टार्टिंग द श्रीधा ब्रांड, आपने किसी भी जगह पे ब्रांड का जॉब वगैरह किया, या जस्ट आफ्टर कंप्लीट योर एजुकेशन यू हैव स्टार्ट द ब्रांड? आपने कैसे नहीं, स्टार्ट किया? मैंने इससे पहले कहीं जॉब नहीं की है. मैंने हम्म. अपने मम्मा को जॉइन किया था उनकी बुटीक में, तो मैंने उन्हीं से सीखा है. ओके, इस मतलब सी इज योर गुरु इन दिस बिजनेस, आप ये बताना चाहते हैं, राइट? यस. ओके, सो आपने आपका फैशन डिजाइनिंग का काम एजुकेशन को कंप्लीट किया, आफ्टर दैट आल्सो
जैसे आपका मदर थे तो आपको इस विषय में ऑलरेडी नॉलेज थे, देन यू स्टार्ट योर श्रीधा ब्रांड. Yeah, she's also have a knowledge, and my elder brother has a very good knowledge about that. In a Okay. fashion, he is the best fashion stylist. He's the best fashion designer also. Okay. Right now, he's in a different field, but Hmm. in a future, he joined me. Yeah. Okay, okay, okay. That's great. That's great. And just you have just I have seen your brand name Sridha. So there have any kind of story behind कि श्रीधा आपने क्यों चूज किया या श्रीधा कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है इस ब्रांड को चूज करने के लिए? Shridha is a very special name for me because it's a name of my Radha Rani, and Okay. and Shrida's meaning is a very it's a bold, unique, and divine. It's a Hmm. beauty that connects with clothing and fashion. So it's a grace, beauty, elegance. So yeah. Okay. So that's why you have choose this name. So this is the mixture of बोला है Everything. आपने आपका आफ्टर एजुकेशन कंप्लीट यू हैव स्टार्ट योर ब्रांड श्रीधा. सो आई थिंक आपका स्टार्टिंग का जो ब्रांड आपने सिलेक्ट किया था आई थिंक इट वाज ऑफलाइन राइट इन योर ओन प्लेस. सो जब ऑफलाइन आपने एक ब्रांड को स्टार्ट किया बिकॉज पहले आपका छोटा सा शॉप था छोटे से चीजें थे बट आप उस जगह को खड़ा करके एक ब्रांड में तब्दील जो कर रहे हो उसमें समेट रहे हो. सो व्हाट वाज द चैलेंजेस यू फेस्ड प्लीज थोड़ा सा अगर शेयर करें तो हमारे साथ. ऑफलाइन में स्टार्टिंग में चैलेंजेस ये थे कि नया कुछ नया क्या लाए हम, लाइक हम्म. इन अ मटेरियल, इन अ डिजाइन, हम्म. इन अ न्यू प्रोडक्ट्स हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं. So, we start from a scratch. We explore again the material, fabric, ओके. ओके. and learning about customers dealing, which is I learned from my mother. ओके. हम्म. So then I start Shridha. श्रीधा स्टार्ट करने से पहले यही था अंदर कि ब्रांड का नाम क्या रखना चाहिए कि सबको हम्म. अट्रैक्ट करे, और राइट. इसकी जो ग्रेस है श्रीधा की, हम्म. वो लोगों तक हम्म. कैसे पहुंचे. एक जो श्रीधा के यूनिक डिजाइन है, एलिगेंट डिजाइन है, जो कि टाइमलेस ब्यूटी है. बिकॉज श्रीधा डिजाइन इज अ what should I say that it's a contemporary design with a हम्म. traditional touch. ओके. So yeah, मतलब लोगों को मन को छू जाए वो बात है और वो exactly. हर हर फेस्टिवल पे हर जगह पे दैट दे कैन यूज योर ब्रांड बेसिकली. एग्जैक्टली exactly. और जो विमेन्स हैं उनको कंफर्टेबल होए, हम्म. उनको गॉट यू. कंफर्टेबल लगे फैब्रिक, प्रोडक्ट which is not a low quality. It's a very good quality products we make, and in a very unique designs हम्म. we give our customers. मतलब ऐसे लगे कि यूज करने की बात कोई चीज को यूज किया है वो Yes, फील दैट yeah, एग्जैक्टली वांट टू बी गिव टू द कस्टमर्स कि वो yes. फील उसको करे कि हाँ मैंने कुछ यूज किया. ओके अंडरस्टैंड दैट. एंड सो एंड अनदर क्वेश्चन जो एक्चुअल में बहुत सारी एंटरप्रेन्योर्स को होता है एंड बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को सॉरी मैं पूछता हूँ ये क्वेश्चंस कि व्हेनेवर यू स्टार्ट द बिजनेस आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको कौन दिया था और कितना रुपए थे? मुझे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मेरी मदर ने दिया था, which ओके. is 7,000, and ओके. I started from this. ओके. फ्रॉम 7,000 you start building the things. Yeah, on that time, I in a affordable prices, and we design. I spend that money on a handbag designs and production also, which is very in a Oh. low quantity of product. Hmm. So when I started, it's a risk because it's a business. हाँ. बिजनेस में रिस्क हाँ. नहीं लिया तो क्या किया. क्या नहीं. दैट इज द थिंग ना रिस्क तो ना इश्क कुछ भी बिल्कुल. नहीं. So, first, before that, I was thinking that it's going to be
great or not. हम्म, So I think about it and I go for it. That होगा होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। क्योंकि इट्स अ बिजनेस। इन अ हाँ। बिजनेस ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, वो रोज सेम ग्राफ नहीं चलता है, और एवरी डे इज नॉट अ सेम डे। राइट, राइट, सो या। अंडरस्टैंड दैट। एंड वन थिंग कि आपने जो श्रीधा ब्रांड स्टार्ट किया, इट्स मैंने मैंने जितना एक्सप्लोर किया, मेरा टीम ने जितना एक्सप्लोर किया, इट्स अ हैंडबैग ब्रांड आल्सो। वी यू हैव सम काइंड्स ऑफ like a boutique jewelry that kind of works also there. So also there have been the market in Kashmir also, like same kind of brands are there. हमने जितना रिसर्च करके देखा। So what kind of uniqueness do you have in your product जो बाकी से अलग करता है, वो थोड़ा अगर हमारे साथ शेयर करें तो। हर डिजाइन सबसे अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। और जब कस्टमर हमारे रिपीट होते हैं, वो जब आते हैं, वो जब बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिकॉज वी बिलीव इन अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, नॉट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड मास प्रोडक्शन। गुड। सो या। एंड व्हाट काइंड ऑफ प्राइस रेंज आपका प्रोडक्ट का, किस तरह का प्राइस रेंज है, आपने क्या हमारा रखा है? प्राइस रेंज इट्स स्टार्ट फ्रॉम 500 to 10,000 of ओके, suits, फाइव। clothing. Yeah. And ओके, handbags, it's a 300 to last 5,000. 300 to 5,000। एंड ये जो आपका सूट्स एंड बैग का जो कॉम्बिनेशन है, ये Yeah. ऑल्सो एक कस्टमाइजेबल है। लाइक अगर कोई पर्सन अगर चाहे कि मेरे को थोड़ा इस तरह का डिजाइन चाहिए, सो इज इट पॉसिबल दैट कि आप उनको कस्टमाइज करके दे दो? Yes, it's possible. We ओके, customize, मतलब yeah. We customized एप्लीकेशन also दे। suits and handbags also. Yeah. एंड इट मीन्स इन हाउस यू विल डू एवरीथिंग फॉर देम कि उसको किस तरह का डिजाइन चाहिए और कैसा चाहिए। Yes, absolutely. राइट। ये आपका जो बैग का आपने बताते इस चीजों को, बैग एंड द सूट्स एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल। ये बहुत अच्छी तरीके से कस्टमर उसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं उनके सबसे। एंड ऑल्सो कलर्स अगर वगैरह चेंज करना चाहे वो भी कर सकते हैं वो लोग, राइट? Yes. इस जगह पे इस तरह का कलर चाहिए, इस तरह के चेंजेस। हाँ जी, ये सब कस्टमाइजेशन और ये सब अवेलेबल है। और कस्टमर्स में सब कुछ अवेलेबल है। सो कि जैसे अभी हम लोगों का पॉडकास्ट अभी ऑल ओवर इंडिया देखेंगे, ऑल ओवर इंडिया की पर्सन देखेंगे, कुछ ऑल्सो सम पर्सन विलिंग टू कनेक्ट। बिकॉज जो चीजें आपने बोला कस्टमाइजेबल चीजें, ये अभी कोई नहीं दे रहा है ऐसा मार्केट में। है बहुत सारी ब्रांड, बट बहुत कम ब्रांड है जो आपको कस्टमाइज करके देता है कि आपके माइंडसेट के हिसाब से। सो इफ एनी पर्सन वांट टू बी कस्टमाइज देयर थिंग्स, सो वो कैसे आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? We have a page on Instagram. It's a ओके, श्रीधा ऑफिशियल। सो वहाँ से ओके। कस्टमर्स हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप हमें ऑर्डर कीजिए, इंक्वायरी डाल दो, एंड यस वी रिस्पॉन्ड यू, फिर मैंने तो जिस एंड तरीके वी से उनका डिजाइन कॉन्टेक्ट वगैरह यू। चाहिए। यस, वट एवर दे वॉन्ट वी गिव देम। ओके, ओके, अंडरस्टैंड दैट। एंड द थिंग इज दैट अभी जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक दे आर स्टार्टिंग देयर ब्रांड ऑल्सो, कुछ जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग दैट का जॉब का भी 9 to 5 का हासिल हो रहा है, अभी थोड़ा छोड़ते हैं, स्टार्ट समथिंग और कि थोड़ा रिस्क लेके देखते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइस है? एडवाइस ये है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अपना विजन क्लियर रखो। अगर आप चाहते हो कि चाहे फैशन हो या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फील्ड हो, तो आपने अगर एक बार ठान लिया कि ये चीज़ करनी है, तो फिर उसको करनी है। उसमें फिर टाइम मत लगाओ। इफ यू हैव अ टाइम, इफ यू हैव अ सोर्स, देन जस्ट डू इट। डोंट वेट फॉर अदर्स, डोंट वेट फॉर others opinion or helping, because nobody come for your help. Do yourself and be independent. So just do it, and ओके, be authentic, be yourself, and make your true identity that build your brand. Because I see many people that they have a privilege, they have a family background of a business, but they don't want to do that. They like they if they are going, they don't do that. They just like we don't want to go for selling the products.
That's not Mm. our type, that's not jamming me. So that's Right, not right. the thing. Just do it. बिकॉज़ आप सबसे पहले अगर सीखोगे नहीं, तो आप करोगे कैसे? जस्ट लर्न Yeah. एंड डू एंड जस्ट टेक क्योंकि इट्स अ बिज़नेस, रिस्क Mm. लेना पड़ता है। रिस्क नहीं लिया तो क्या किया लाइफ में? हाँ, विदाउट रिस्क तो कुछ चीज़ें अभी बिल्ड भी नहीं कर सकते हो। Exactly. Okay. Some people have a family background. It's a very good हुँ, family background, and they born with a silver spoon. So they don't want to join their family businesses. They were like, "Ki, we do our business, something else," but they don't do that. They just sit हुँ, and think, हम करेंगे, but they वो नहीं करते हैं. और ऐसे बैठने से नहीं होता है, करना पड़ता है। जब तक आप करोगे नहीं तब तक वो कैसे होगा? राइट, 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 राइट। ये तो आपने जो बात बताया एक्चुअली दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट लेसन्स फॉर द एंटरप्रेन्योर बिकॉज़ विदाउट रिस्क, विदाउट थिंकिंग हाउ you build the something better, Exactly. ठीक है? And एंड वन I'm थिंग या and I feel very pity about those people because हुँ, if you have that platform, हुँ, just take advantage of that. Don't waste that because जिन बच्चों को ये प्रिविलेज नहीं है, वो भी हुँ, वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन बन रहे हैं, जो कि आज के राइट, टाइम राइट, पे बहुत ज़रूरी है। और अगर हुँ, आपके पास वो प्रिविलेज है, तो आप उसको यूज़ करो, उसको हुँ, वेस्ट मत करो। समझ गया। एंड एक्चुअली और एक सवाल पे आते हैं बात-बात कि जब आपने स्टार्ट किया था, आई नो दैट देयर वाज़ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस बिकॉज़ विदाउट चैलेंज कुछ स्टार्ट ही नहीं होते। कुछ So नहीं। whenever you face the problems or you feel that थोड़ा लो फील कर रहे हो आप सब कुछ इन्वेस्ट कर दिए टाइम एंड एवरीथिंग सो व्हाट मोटिवेटिंग यू बेसिकली कि नहीं चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। से चैलेंजेस रोज़ आते हैं। रोज़ हम्म, कोई ना कोई चैलेंज आएगा, किसी दिन छोटा आएगा, किसी दिन बड़ा आएगा। बट यू हैव टू हम्म, फेस इट बिकॉज़ इट्स अ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी एंड जस्ट एन्जॉय इट। सो लो फेस भी आता है। हम्म, आई टेल यू वेरी पर्सनल थिंग। In या 2017 November, my हम्म, father passed away. ओके, After that, my journey started that हम्म, I want कि अब कुछ करना है खुद के लिए, फैमिली के लिए, कि हम्म, खुद की आइडेंटिटी बनानी है, खुद राइट, का ब्रांड बनाना है, कुछ भी हो जाए। हम्म, Because I see many people, I am expecting that हम्म, from those people that they help me, but they are not हम्म, helping me. हम्म, But they are not helping me. They demotivated me that हम्म, don't do that. It's a business. Just complete your हम्म, studies and do your job. Some find job, something, and take a salary. मैंने कहा हम्म, no, that's not a cup of my tea. ओके, Because I'm from starting, I'm a stubborn. मैंने हम्म, जो चीज़ मैंने एक बार ठान ली कि करना है मीन्स करना है. So I started हम्म, brand Shridha and here I am. या एंड एक्चुअली फीमेल के लिए तो ये चीज और भी बड़ा है बिकॉज वन एवर दे आर गोइंग टू बी स्टार्ट समथिंग उनको ये बोलते हैं, चलो आपने पढ़ाई कर लिया बोल एंड गुड जॉब करो देन डू योर मैरिज एंड स्टार्ट योर फैमिली। इस Exactly, तरह का एडवाइसेस exactly. दिया जाता है बेसिकली फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स आल्सो फ्रॉम द सम काइंड्स ऑफ जो सो कॉल्ड हमारा रिश्तेदार होता है, जो सो कॉल्ड रिश्तेदार मैं उनको बुलाता हूँ, सो दे आर आल्सो एडवाइसिंग समथिंग बट वेरी ब्लेस्ड दैट आपके साथ आपका फैमिली है। सो रिश्तेदार दोस्त वगैरह को ताना आए होंगे आपका पक्का कि क्या स्टार्ट किया मुंबई जाके ये सब पढ़ाई करने के बाद ये स्टार्ट समथिंग। सो उसको आपने कैसे फेस किया उस चैलेंजेस को? उसको मैंने ऐसे फेस किया, उन सबको मैंने पॉजिटिव लिया। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करते थे। मैंने उस ओके, चीज़ को मोटिवेशनली लिया कि यस, इट्स अ मोटिवेटेड फॉर मी। ओके, नेगेटिव पीपल आते हैं, अपने नेगेटिव ओपिनियंस देंगे, आपको डिमोटिवेट करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए आएँगे कि ये खड़ा ही नहीं हो।
हम्म। क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं वो कभी नहीं चाहेगा कि और कोई बिजनेस करे और कोई राइट। सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। एंड इट्स द ह्यूमन नेचर ऑल्सो कि हाँ, कोई या नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई बढ़ जाए और सक्सेसफुल बन जाए। एग्जैक्टली, इट्स अ ह्यूमन नेचर। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। So by these things, your brand has started and your it's completely running like this. And जो और एक सवाल जो बार बार आते हैं बेसिकली फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर साइड ऑल्सो कि कौन सी उम्र में हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट एज टू स्टार्ट। तो क्या मेरा ये सवाल आपसे, क्या एक्चुअल में सच में कोई एज होता है इसको स्टार्ट करने के लिए, या क्या माइंडसेट कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं? आई वांट टू बी नो फ्रॉम यू। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई एज नहीं है। आप चाहे हम्म। 15 इयर्स के हो, आज के टाइम पे हर कोई बिजनेस कर सकता है और किसी भी चीज का बिजनेस कर सकता है। बिकॉज दिस इज इंडिया। इंडिया में हर राइट। चीज का बिजनेस है। आबादी तो सबसे बड़ी एडवांटेज है हमारा। एग्जैक्टली। इतना इतना बड़ा जनता, कुछ भी करो। एग्जैक्टली। तो बिजनेस के लिए मत सोचो कि कब स्टार्ट करें, किस एज में स्टार्ट करें। इफ यू थिंक अबाउट दैट, आई एम डूइंग दैट बिजनेस, सो जस्ट डू दैट। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अब हिरन होता है, वो जंगल में हम्म। कस्तूरी ढूंढ रहा होता है। राइट। 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 तो वो कस्तूरी उसके अंदर ही होती है। हम्म। तो अपने आप को भी जानो, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो। सो बिलीव इन योर सेल्फ and just do that and take a step and take a risk and be दैट्स real. दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि बी रियल। जिंदगी Yeah, में ये होना सबसे बड़ा जरूरी है कि अगर आपने आपको खोज लिया, सो एनीवन कैन डीमोटिवेट यू इन द जर्नी ऑफ सक्सेस बेसिकली। exactly. ओके। सो हम अभी पॉडकास्ट के लास्ट तक आ रहे हैं, सो विल गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लाइक दैट, व्हाट थ्री एडवाइसेस फॉर द पर्सन। मैं पहले ही बताऊंगा जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं कुछ जानने या कुछ चीजें, उनको कौन चीजों को ध्यान रख के चलना चाहिए एट द वेरी बिगिनिंग, जो गलती आप लोगों ने किया है कि वो गलती वो लोग ना करे और उनका चीजों को अच्छी तरीके से करे। सो आई वांट टू बी नो द थ्री एडवाइसेस फ्रॉम यू। जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनके लिए या। एडवाइस ये है कि आपने जिस चीज का भी बिजनेस करना है, उसके हम्म। बारे में पहले पूरा स्टडी करो, उसको हम्म। एक्सप्लोर करो, उसके बारे में, उसकी चीजों के बारे में। एकदम से कोई भी स्टेप मत लो। ओके। बिकॉज स्मॉल स्टेप्स, इट्स वर्किंग एंड इट हम्म। गिव्स यू गुड रिजल्ट्स। Because राइट। good things take a time, and success is not happen overnight. It takes time. राइट। So अपने विजन को लेकर क्लियर रहो, be confident, believe in yourself, and just do that. ओके। And be authentic with your identity, with your brand. राइट, मतलब आप क्या बनाना चाहते हो और क्या सर्विसेज देना चाहते हो टू द पीपल, और Exactly. वहां से उन लोगों का क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द एंटरप्रेन्योर। Okay. So thank you so much for coming to the podcast, because it was a very, very good, informative podcast. So हाँ much जी, for coming to the podcast. Thank you so much for giving your time. Actually, it was a very, very informative podcast. And also, I have learned something new because every single day is a learning day for everyone. So this was also the learning day for me also. And I hope from this podcast बहुत सारे entrepreneur को भी बहुत सारी हेल्प होंगे, उनको भी थोड़ा आइडियाज मिलेंगे कि कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से करें ऑल्सो, दे विल मोटिवेट। सो थैंक यू फॉर कमिंग अगेन, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्रांड, ऑल द thank बेस्ट you फॉर योर so much. जर्नी, Thank एंड you आई so होप much. इट विल बी अ बिग ब्रांड, एंड इट विल बी अ बिग, एंड आज सबका घर घर में ये ब्रांड पहुंचे। थैंक यू Thank सो you मच so फॉर योर much, टाइम। and thank you so much for inviting me. या, इट्स माय प्लेजर। हरे कृष्ण, राधे राधे। Hare Krishna, Radhe Radhe.